हेलो गाइस एंड आज मैं काजल आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ TCS NQT के दो क्वेश्चंस। तो आज हम लोग ये दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप दैट यू विल फुली अंडरस्टैंड दीज टू क्वेश्चंस, राइट? So let's start with this. So the question number one here is that you are given a square matrix, right? A square matrix simply means that rows and columns are equal, है ना? So number of rows and columns are equal, right? So you are given a square matrix and what you have to calculate is the absolute difference between the sums of its diagonals. So if suppose we are given with this matrix, है ना, अगर हमें ये मैट्रिक्स गिवन है तो इसके डायगनल्स क्या होंगे? द फर्स्ट डायगनल इज 159, राइट? दिस इज योर राइट डायगनल and the left diagonal is 359. This is your left diagonal. And what is it asking? It is asking for the absolute difference between these two diagonals. So absolute values does not contain the negative integers. For example, अगर हमने इसका left to right diagonal का sum निकाला तो it is 1 plus 5 plus 9 which is equals to 15. देन हम लोगों ने राइट टू लेफ्ट डायगनल का सम किया, दैट इज 3 प्लस 5 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 17. अब चाहे आप 15 माइनस 17 करो या 17 माइनस 15 करो, एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 2, दैट इज विदाउट द माइनस साइन, राइट? तो हमें भी एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, राइट? सो वन मोर एग्जाम्पल इज हियर विच इज सैम्पल इनपुट क्या क्या दिया जाएगा. तो आपको दो इनपुट्स देने हैं, एक तो द साइज ऑफ योर मैट्रिक्स कि आपकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हैं वो कितने कितने होने वाले हैं, और उसके बाद आपको इनपुट कराना है अपना मैट्रिक्स, ठीक है? तो आप लोगों को पता है दैट TCS में यू हैव टू राइट द कोड फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, है ना? यू आर नॉट गिवन विद एनी फंक्शन जिसे आपको डिफाइन करना होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में. यहाँ पर आपको इनपुट्स लेने से लेके कोड तक एवरीथिंग यू हैव टू इम्प्लीमेंट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. तो यहाँ पर हमें दो चीज़ करनी है, एक तो ये इनपुट्स लेकर आने हैं और उसके बाद ये मैट्रिक्स इनपुट करानी है. वंस द मैट्रिक्स हैज़ बिन इनपुटेड उसके बाद आपको इसके डायगनल्स के सम कैलकुलेट करने हैं. सो अगर हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स को ज़रा ड्रॉ कर लें, राइट? सो नाउ वी आर ड्रॉइंग दिस मैट्रिक्स. वी वॉन्ट टू थिंक अबाउट द लॉजिक दैट वी कैन यूज़ हियर. सो इस मैट्रिक्स के अंदर हमने वैल्यू इनपुट कर दी है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, समथिंग लाइक दिस. वी हैव इंसर्टेड द वैल्यूज इनसाइड इट. इसके बाद वी वांट टू सी कि इसकी इंडेक्सिंग कैसे की जाती है एरे में. सो वी वांट टू सी द इंडेक्सिंग, हाउ इट इज डन इनसाइड द टू डायमेंशनल एरे. सो सी, this is your row number 0, so 0 is going to be used for this row, and this is your column number 0. This is your row 1 and this is your row 2. Similarly, this is your column 1 and this is your column 2. Now if you want to, for example, access some particular value, for example you want to access this value, तो आप इसको कैसे नेम करते हो? You name it by the index which is first row and first column. If the name of this array is suppose ARR, then you are basically pointing out this element with the help of ARR11. Similarly, if you want to point out this element, you will name it as ARR2. That is, first of all you have to mention the row number. The row is 2 and then you have to mention the column number which is 1. So this number is defined by these two index that are 2 and 1, right? So now we have to find some logic, right? We have to find some logic to get these two diagonal sum, right? So what is the logic behind it? Let me first rub off these, and now let us try to understand what will be the logic to get the diagonal sum only. So if you will consider the indices for this particular element, they are 0 0, here it is 0 1, it is 0 2 here. Here it is 1 0 1 1 and 1 2, and then 2 0 2 1 and 2 2. So if you want to calculate the sum of left to right diagonal, right, from left to right, that is this diagonal, if you want to calculate the sum of this left to right, sorry, this is right to left,
So if you want to calculate the sum of this diagonal, which is from left to right, left to right, what you have to do is you have to see the indices of these three elements. So they are 0, 0, 1, 1 and then 2, 2. So the condition here is that I should be equals to j first of all, right? I should be equals to j and they are incrementing at each level by 1, right? तो हर लेवल पे ये एक एक से इंक्रीज हो रहे हैं. तो अगर मैंने यहाँ पर इनिशियली एक पॉइंटर लिया i जो कि रो को पॉइंट कर रहा है और एक पॉइंटर लिया j जो कि कॉलम्स को पॉइंट कर रहा है और दोनों को 0, 0 पर पहुंचा दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पॉइंटर इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है 0, 0, है ना. i और j की हेल्प से हमने 1 को पॉइंट करा दिया. अब मैं क्या करूँगी कि इनको एक एक करके इंक्रीमेंट करती जाऊँगी. तो जैसे ही मैं इंक्रीमेंट करूँगी i इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू 1, तो दोनों को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया. तो मैं इस वाले एलिमेंट पर पहुँच जाऊँगी, यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 1, 1 है. फिर से मैं दोनों को इंक्रीमेंट कर दूँगी, i इक्वल्स टू 2 एंड j इक्वल्स टू 2. तो I will reach at level 3, right? Just a second. So I will reach at this level number 3, that is element number 3, which is denoted by these two elements, these two I and j, that are 2 and 2, right? तो इस तरीके से मैंने लेफ्ट डायगोनल को बेसिकली यहाँ पे उसका सम कर लेना है. तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेट्स सी इट इन द कोड. तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट टू राइट वाले डायगोनल का सम करा लेते हैं. सो हम अभी कितना पोर्शन कवर करने हैं, सबसे पहले एक इनपुट लेंगे जिसमें हम अपना व्हाट इज द साइज ऑफ आवर मैट्रिक्स ये डिफाइन करेंगे. देन विल टेक इनपुट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स और उसके बाद हम लोग उसके लेफ्ट टू राइट डायगोनल का सम कर देंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट सेक्शन. ऑलराइट, सो यहाँ पर लेट अस क्रिएट अ फाइल फटाफट से. तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है. तो question 1 डॉट Java, right? So we are going to solve it here in Java, but आप अपनी choice की programming language use कर सकते हो कोई सी भी, right? The logic is going to be same. So यहाँ पर we are writing question 1 and inside it we have to have this main class obviously, right? And now we are saying that we have to use a scanner class क्योंकि हमें कुछ scan करने हैं, right? तो हम scanner class use कर लेते हैं क्योंकि हमें input से scan करने हैं. Scanner sc is equals to new scanner and इसके अंदर हम पास कर देंगे system dot in. That's it. And let's import this scanner class as well. So import and that's it. Now the first thing is that we have to take input n, that what is the size of this matrix, right? So equals to sc dot next int. So what is the size, that is how many rows and columns are going to be there inside this matrix. हमारी कितने rows and columns होने वाले हैं, ये input हमने n के अंदर store करा लिया है. Now obviously we have to create a 2-dimensional array and the size of this array is going to be n into n, right? So new int n into n, and later on what we want is to take the input. So for that we will use 2 फॉर लूप्स, राइट? हम 2 फॉर लूप्स यूज़ करने वाले हैं. जो आपका फर्स्ट फॉर लूप है ये रोज़ को आइडेंटिफाई करेगा, दैट इज़ ये रोज़ को पॉइंट आउट करेगा. एंड जो आपका सेकेंड फॉर लूप है ये आपके कॉलम्स के लिए है ना. तो फर्स्ट फॉर लूप हमारे रोज़ के लिए एंड सेकेंड फॉर लूप हमारे कॉलम्स के लिए. तो यहाँ पर हमने बोल दिया इन j इज इक्वल्स टू 0 एंड देन j शुड बी लेस देन n एंड j प्लस प्लस. एंड नाउ वी आर सेइंग कि एक एक करके सारे इनपुट्स ले लेते हैं, ठीक है. सो इंट आई जे इज इक्वल्स arr ij इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, राइट. तो अगर हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है तो हमें 9 इनपुट्स यहाँ पर एंटर कराने पड़ेंगे एंड दैट्स इट. नाउ व्हाट वी वांट इज़ कि हम सेकेंड चीज़ क्या चाहते हैं कि हम लेफ्ट डायगोनल का सम यहाँ पर प्रिंट करा सकें. So उसके लिए we are going to say that you can either use for loop or while loop. So first of all what we have to do is one pointer आपको लेना है, that is I, और एक pointer आपको लेना है j, और दोनों को initialize कर देना है using 0 0. And now you have to say that while I
is equals to j and I is less than n, so till then what you have to do is, मतलब जब तक I की वैल्यू लेस देन n है, नाउ ये वाला लॉजिक हमें पता है कि I और J इक्वल होनी चाहिए, तो हम इनिशियली उन दोनों को ही जीरो पर पोजीशन कर रहे हैं और अब हम दोनों को ही एक साथ इंक्रीमेंट करेंगे 1 1 से, तो ऑब्वियसली इनकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी. अब हम बोल रहे हैं कि I जो है वो लेस देन n रहना चाहिए. ठीक है, तो अगर हमने n का साइज 3 लिया है तो I हमेशा लेस देन 3 रहना चाहिए. ये हमने कंडीशन यहाँ पे लगा दी है. एंड नाउ लेफ्ट सम, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं लेफ्ट सम, और इनिशियली लेफ्ट सम में 0 है एंड वी आर कैलकुलेटिंग दिस लेफ्ट सम प्लस इक्वल्स टू, राइट, वी आर कैलकुलेटिंग दिस सम. हाउ? तो लेफ्ट सम के लिए हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट सम के अंदर आप ARR IJ की वैल्यू ऐड कर दो एंड वंस यू हैव एडेड 0 0 पोजीशन, अब आप 1 1 पर जाना चाहते हो तो I प्लस प्लस कर दो और J प्लस प्लस कर दो. अब जब दोनों एक साथ इंक्रीमेंट हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट वैल्यू होगी आपकी ARR 1 1, उसके बाद ARR 2 2, और जैसे ही I की वैल्यू 3 होगी तो हमने बोल दिया कि इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना. तो आपका लेफ्ट सम कैलकुलेट हो चुका है. अब नाउ व्हाट यू वांट इज कि हम अपने राइट सम को कैलकुलेट करें. तो राइट सम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? राइट सम के लिए अगेन वी नीड टू हैव दिस मैट्रिक्स, और इसके अंदर अब हम इस वाले डायगनल की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल हम इनका एडिशन करते हैं I प्लस जे का, सो या फिर दिस इज़ वन ऑफ द लॉजिक, बट इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज़ कि अगर आप देखो तो हम यहाँ पर I को इनिशलाइज कर सकते हैं 0 से, ठीक है, बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0, एंड J को इनिशलाइज कर सकते हैं 2 से. अगर n की वैल्यू क्या है 3, तो हमने J को किससे इनिशलाइज कर दिया है n माइनस 1 से बेसिकली, राइट. J को इनिशलाइज कर दिया है n माइनस 1 से, विच इज़ इन दिस केस 2. नाउ आप जब नेक्स्ट, तो आपने सबसे पहले 3 को ले लिया है ना, 0,2 से आपका 3 रिप्रेजेंट हो रहा है. उसके बाद नाउ यू वांट टू रीच टू दिस 5, तो इस नेक्स्ट केस में मैंने क्या कर देना है, I प्लस प्लस कर देना है. तो I की वैल्यू क्या बन जाएगी 1, सॉरी I माइनस माइनस कर देना है, तो I की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 सेकेंड, I शुड बी प्लस प्लस एंड I की वैल्यू बन जाएगी 1, एंड देन J को कर देना है माइनस माइनस, तो J की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1. सो नाउ जब I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है तो यू आर पॉइंटिंग टू दिस 5. तो यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया आपका 5, और उसके बाद फिर से आप क्या करोगे, I प्लस प्लस एंड J माइनस माइनस, एंड अगेन I की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस है तो 2, और J की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0. सो नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट, राइट, 2,0. तो यहाँ पर 7 भी ऐड हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड द एलिमेंट्स ऑफ राइट टू लेफ्ट डायगोनल. सो लेट्स डू इट. So now we are calculating the sum of left to right, that is right diagonal, right sum. So this was, I guess, all right. So right sum, and initially it is equals to 0, and now we are saying that while I is less than n again, till then what we have to do is, we have to first of all initialize our I to 0, and we have to initialize our J to n minus 1. These are the two things that we have to do. And after this, what we are going to do is, we have to say that right sum is equals to plus equals to ARR IJ. Simply this, and that's it. And now we have to calculate the absolute sum. So we have calculated the right sum and the left sum. और अब हमें calculate करना है absolute sum. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? We have this math.absolute function जो हम use कर सकते हैं, और इसके अंदर we will pass left sum minus right sum. और अब जो भी वैल्यू आती है वो हम प्रिंट करा देंगे. तो sys out system.out.println के अंदर we will put this method कि जो भी वैल्यू आती है आप प्रिंट करा दो, and that's it. So now if we'll use the terminal, so first of all
हम इसे कंपाइल कर लेते हैं, तो जावा सी question1.java एंड अब हम इसे कर लेते हैं रन. So we will use one of the test cases. So this test case we will have here. Alright guys, so one thing more that we have to add here is that जब आप राइट सम के अंदर एडिशन करा लेते हो तो उसके बाद आपको अपने आई और जे को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है. सो आई को हमें करना है इंक्रीमेंट और जे को हमें करना है डिक्रीमेंट. सो दिस इज़ वन मोर लॉजिक. और अब हम अपने टेस्ट केस को यहाँ पे रन कर सकते हैं. सो लेट अस सेव दिस प्रोग्राम. और यहाँ पर हमने बोला जावा सी question1.java और यहाँ पर हम अपना टेस्ट केस पेस्ट कर देते हैं एंड द आउटपुट इज़ कमिंग आउट टू बी 15 विच इज़ राइट. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई होप ये सबको क्लियर है, राइट. सो इट वाज वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट अगर किसी को डाउट है तो दे कैन सी इट. नाउ लेट्स कम टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज, in a network marketing, a person who sells some merchandise becomes the root node of the so-called marketing tree. तो जब भी कोई कोई भी मर्चेंडाइज सेल करता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन एक रूट नोड बन जाता है, ठीक है. When the first person inducts someone into the network marketing tree, the first person becomes the supervisor. अब अगर सपोज इस पर्सन 1 ने किसी को इंक्लूड किया अपनी टीम के अंदर, ठीक है, किसी नए पर्सन को इंक्लूड किया अपने ट्री के अंदर, अपने नेटवर्क मर्चेंडाइज मार्केटिंग के अंदर एंड अपने अंडर बेसिकली, तो वो इसका सुपरवाइज बन जाएगा. P1 जो है वो P2 का सुपरवाइज बन जाएगा. क्यों? क्योंकि P1 ने P2 को इंडक्ट किया है, राइट. इसी तरीके से अगर इफ़ द न्यू रिक्रूट इंडक्ट्स अ थर्ड पर्सन, अब अगर P2 किसी और को इंडक्ट करता है, सपोज P3 को, तो P2 विल बिकम द सुपरवाइजर ऑफ P3, राइट. इनटू द नेटवर्क मार्केटिंग ट्री द न्यू रिक्रूट बिकम्स द सुपरवाइजर. तो अब हमारा P2 जो है वो सुपरवाइजर बन गया किसका? P3 का. द ट्री ग्रोज सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसी तरीके से आपका जो ट्री है वो इंक्रीज करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा. So whenever anybody in the network marketing tree makes a profit, अब suppose आपका जो ट्री है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है. P1, then comes P2, फिर आ जाता है आपका P3 and then P4. अभी बोलते हैं कि अगर इन चारों में से किसी ने भी प्रॉफिट बनाया, फॉर एग्जाम्पल P3 ने सपोज प्रॉफिट कर लिया कितने रुपए का? 100 रुपीज़ का. जैसे आगे आप एग्जाम्पल देखोगे. सो सपोज P3 ने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लिया. तो ये क्या कह रहा है कि they have to pass the certain percentage of that profit to supervisor. तो इस P3 को अपने जो ये इसने प्रॉफिट बनाया है उसका कुछ परसेंटेज P2 को वापस करना पड़ेगा. तो सपोज आपके प्रोग्राम ने कह दिया कि 10% इसका वापस करो किसको? P2 को, ठीक है. सपोज 10% की बात है कि जब भी P3 प्रॉफिट बनाएगा तो उसे 10% देना पड़ेगा, जब भी P4 प्रॉफिट बनाएगा तो उसे 10% देना पड़ेगा अपने सुपरवाइजर को. सो अगर P3 ने 100 रुपये कमाए हैं तो 10% मतलब 10 रुपये उसे किसे देने पड़ेंगे? P2 को, ठीक है. द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट पास टू द सुपरवाइजर विल बी राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर. तो अगर ये गलती से कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ जाती है तो राउंडेड ऑफ हो जाएगी अपने नियरेस्ट इंटीजर के अंदर एंड वो आपको डिस्प्ले करना है एंड हेंस विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, ठीक है. तो कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द पर्सन एट द रूट. तो आपको क्या करना है? पर्सन P1 का प्रॉफिट कितना होगा ये कैलकुलेट करना है. तो पर्सन P1 का प्रॉफिट कैसे आएगा? सपोज अब P2 ने 10 रुपये कमाए, ठीक है, P3 की वजह से P2 को 10 रुपये मिले. तो इस 10 का भी जो 10% होगा वो किसे मिलेगा? P1 को. सो इस तरीके से P1 ने बिना कुछ करे 1 रुपये यहाँ पे कमा लिया है, ठीक है. सो इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हमारा जो P4 है उसने सपोज 200 रुपये कमाए,
और इसका जो 50% है वो सपोज इसे अपने सुपरवाइज़र को देना है, तो 200 रुपये का 50% इज़ 100 रुपीज़, तो 100 हैज़ टू गो टू P3, ठीक है। अब P3 को अपने सुपरवाइज़र को 50% देना पड़ेगा, तो 100 रुपीज़ का 50% इज़ ₹50, तो 50 से P2 को देना पड़ेगा। अब P2 को 50% किसे देना पड़ेगा, P1 को, तो 50 रुपये का 50% इज़ 25, सो 25 रुपीज़ P1 ने कमाई। तो आपको किसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ पर्सन एट द रूट। तो अगर मतलब 4 लोग हैं तो 3 लोगों को प्रॉफिट मिलता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि अगर देर आर टोटल 4 पीपल तो चौथे वाले ने तो कमाए हैं, है ना, और उसके बाद प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू P3, तो ये हो गई एक साइकिल। फिर P2 के पास जाएंगे तो ये हो गया नंबर 2, एंड फिर वो P1 के पास जाएंगे तो नंबर 1, तो नंबर 3। तो अगर 4 लोग हैं तो P1 के पास 3 साइकिल्स के बाद उसका प्रॉफिट पहुंचेगा, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि n इज आइदर, सो 1 इज लेस देन n इज लेस देन 20। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पीपल इन दिस लूप कैन बी ग्रेटर, हैज़ टू बी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 20, दैट इज 2 से लेके 19 तक लोग हो सकते हैं इस चेन में। तो ये जो सुपरवाइज़र और रूट की जो चेन है यहाँ पर, न्यू इंडक्ट की जो चेन है, ये 2 से लेके 19 तक लोग हो सकते हैं इसके अंदर। m दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी फ्रॉम 0 से 10 रेज टू द पावर 8, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कितना कमा सकता है एक इंसान, तो 0 से लेके 10 रेज टू द पावर 8 तक प्रॉफिट कमा सकता है। एंड देन p दैट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, वो 0 से लेके 50 तक हो सकता है, तो 0 से लेके 50% तक का प्रॉफिट जो है वो आपको अपने सुपरवाइज़र को देना पड़ सकता है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन। नाउ इट इज़ ऑल्सो डिफाइनिंग इट हियर, कि यहाँ पे ये क्या डिफाइन कर रहा है, अगर आप देखो तो ये बोल रहा है कि द इनपुट हैज़ 3 लाइन्स, तो आपका जो इनपुट होगा उसमें 3 लाइन्स होंगी, ईच विद 1 इंटीजर, ठीक है। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर n विच डिटरमाइंस द हाइट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग ट्री। तो कितने लोग हो सकते हैं एक नेटवर्क मार्केटिंग ट्री में, ये कौन डिफाइन कर रहा है, आपकी वैल्यू ऑफ n। तो कितने हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स ने बोला कि 2 से लेके 19 लोग हो सकते हैं इस ट्री के अंदर, राइट। द सेकेंड लाइन कंटेन्स एन इंटीजर m विच डिनोट्स द प्रॉफिट अर्नड बाय पर्टिकुलर इंडिविजुअल एट nth लेवल। तो एक nth लेवल पे कितना प्रॉफिट कमा सकता है, ये कौन डिफाइन करता है, आपका सेकेंड इनपुट, दैट इज n। द थर्ड इनपुट इज p विच डिनोट्स प्रॉफिट परसेंटेज दैट नीड्स टू बी पास टू द सुपरवाइजर। तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज मुझे अपने सुपरवाइजर्स को पास करना है, ये हमारा थर्ड इनपुट डिफाइन करेगा। सो नाउ अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पे 3 इनपुट्स दिए हुए हैं, राइट। द फर्स्ट वन इज n विच इज़ हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी देयर, है ना। सो यहाँ पे 3 लोग हैं, विच इज़ एक रूट है, फिर उसका एक इंडक्ट किया हुआ पर्सन है, फिर उसका एक इंडक्ट किया हुआ पर्सन है। 100 मीन्स व्हाट, कि सबसे नीचे वाली लेवल पे जो पर्सन है उसने कितने रुपए कमाए हैं, तो उसने 100 रुपये कमाए हैं, और इसका कितना परसेंटेज उसे अपने सुपरवाइजर्स को पास करना है, तो 10%। तो इस पर्सन 1 ने अपना 10% किसको पास कर दिया, पर्सन 2 को, अपने सुपरवाइज़र को, विच इज़ 10 रुपीज़। 100 का अगर आप 10% निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी 10 रुपीज़। तो 10 हमने किसको पास कर दिया, पर्सन P2 को, राइट। एंड सिमिलरली P2 को भी किसको पास करना पड़ेगा, रूट को, क्योंकि इसने भी तो ये 10 रुपये प्रॉफिट में ही कमाए हैं। सो इसने अपना 10% 10 रुपये का पास कर दिया किसको, अपने सुपरवाइज़र को। तो 10 का 10% कितना होता है, ऑब्वियसली इट इज़ इक्वल्स टू 1। तो 1 रुपया इसने किसको पास कर दिया, पर्सन 3 को, विच इज़ अ सुपरवाइज़र ऑफ P2। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट हमें बताना है कि रूट ने कितना कमाया, तो रूट ने सिर्फ 1 रुपया कमाया है यहाँ पर, राइट। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। सो एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ हियर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 लोग हैं आपके पास, ठीक है, देर आर 4 लोगों की चेन बन रही है आपकी इस बार। सो दिस इज़ पर्सन P1, P2, P3 एंड P4। ये कमा रहा है आपके 2000 रुपये। तो और इसको कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पास करना है P3 को, तो 50%। तो 2000 रुपये के 50% इज 1000 रुपीज़। अब P3 को P2 को कितना पास करना है, 50%, तो इसे 500 रुपये पास करने पड़ेंगे। और P2 को कितना पास करना है, 50% फिर से, सो इसको 250 रुपये पास करने पड़ेंगे P1 को। तो इस तरीके से हमारे रूट का जो परसेंटेज प्रॉफिट आया है वो कितना है, 250 रुपीज़।
नाउ अब हम इसे कोड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट अस सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे खोल लेते हैं अपना second example. So this is question number 2. So let us create a new file here, question2.java. और इसके अंदर again let us have a main function. यहाँ पे हमारे पास 3 inputs variables होने वाले हैं, एक int n, एक int m और एक int p, right? तो यहाँ पर let us take the scanner इस input again. So स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया हम लोगों ने, न्यू स्कैनर, एंड यहाँ पर हमने पास कर दिया system डॉट इन का ऑब्जेक्ट. सो system डॉट इन का ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया है. एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें n इनपुट चाहिए. सो n इनपुट विल बी n इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट. ये हमने फर्स्ट इनपुट ले लिया. देन वी नीड m, तो इट इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट अगेन, राइट. और थर्ड इनपुट विच इज़ p, तो p के अंदर भी हमने इनपुट ले लिया, दैट इज sc डॉट नेक्स्ट इंट. इसके बाद हमने क्या किया, अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई रूट के पास कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आया. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम p को ये हर बार अपडेट कर देंगे. तो हम बोल रहे हैं कि वाइल, तो अगर 4 लोग हैं तो हमें 3 बार प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो रूट का प्रॉफिट निकल आएगा. सो हमने क्या करना है, हमने एक एक करके n को डिक्रीज करना है, और हम कब तक कैलकुलेट करते रहेंगे, जब तक n इज़ ग्रेटर देन 1. ठीक है. तो सबसे पहले हम सपोज़ 4 से लेके, तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ. सपोज़ हमारे पास 3 है, ठीक है, मतलब हमारे पास 3 लोग हैं. तो हमने एक वाइल लूप लगाया, इसमें हम बोल रहे हैं कि जब तक n ग्रेटर देन 1 है तब तक चलाते जाओ. तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो n की वैल्यू क्या थी, 3. ठीक है. तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया. तो ये प्रॉफिट किसका निकल कर आया, इस वाले पर्सन का. ठीक है. उसके बाद हमने n को डिक्रीमेंट कर दिया. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे n की वैल्यू क्या हो गई, 2. अगर n ग्रेटर देन 1 है तो हमें कैलकुलेट करना है फिर से प्रॉफिट. तो यहाँ पे हमने फिर से प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया कि पर्सन अपने सुपरवाइजर को कितना प्रॉफिट देता है, एंड दैट्स इट. इसी तरीके से अगर 4 पर्सन हैं, है ना, 4 लोग हैं, तो n की वैल्यू इस मोमेंट पे कितनी होगी, n इक्वल्स टू 4. यहाँ पर कितनी होगी, n इक्वल्स टू 3. एंड यहाँ पर कितनी होगी, n इक्वल्स टू 2. सो हेंस वी आर राइटिंग वाइल n इज ग्रेटर देन 1 डू दिस. ठीक है. क्या करना है, जब तक n ग्रेटर देन 1 है आपको अपना जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकालना है हर बार नया नया. सो m इनटू, है ना, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट दैट डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. इसको हम किसके अंदर स्टोर करा लेते हैं, दिस इज आवर न्यू m, एंड दैट्स इट. और n माइनस माइनस करते जाते हैं हर बार, और लास्ट में जो हमारी वैल्यू ऑफ m होगी दैट विल बी आवर आंसर. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर हमने द वैल्यू ऑफ m जो कि करंट m है वो रूट का m है, दैट इज़ रूट का कितना प्रॉफिट है, मनी कितनी बनती है उसकी, एंड दैट्स इट. सो अब इसे रन करा के देख लेते हैं क्वेश्चन को. तो cls जावा question2.java, एंड यहाँ पर फर्स्ट इनपुट हमने दे दिया, इसे सपोज 3 पीपल आ देयर, 100 का प्रॉफिट हुआ है उन्हें, और 10% उन्हें पास करना है एज अ प्रॉफिट टू देयर सुपरवाइजर. सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1 विच इज़ राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल वॉज, तो 4 लोग थे हमारे पास, 2000 का प्रॉफिट हुआ, और कितने परसेंटेज पास करने थे, 50%. तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 250. सो इट इज़ कमिंग एब्सोल्युटली करेक्ट. सो एक और काम जो आप कर सकते हैं, सो दैट्स इट. एंड वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज, सो दिस इज़ इट. एंड अगर कोई चेंजेस होंगे तो आई नोटिफाई इट, बट अभी के लिए इतना सही है. सो हमारे ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं. आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आएगा. अगर आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, आप लोग पोस्ट कर सकते हो. आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. ओके, थैंक यू सो मच.